Good morning, student. So as we completed the chapter number 6, okay, so I am going to start the mensuration unit number 6. Okay, so we will take geometry, uh, unit of geometry later on, and first of all we completed that because this is very simple, one of the simple unit in your book. Okay, so start with the very simple things, that is rectangle and some geometries. Okay, basic geometries. Geometrical figure. Okay, figure, and we can say that these are the quadrilateral. Okay. First of all we have to first of all I may start with the rectangle. Okay, as we know, rectangle has 4 sides, length and breadth, and the opposite sides, the property of the rectangle are opposite sides are equal. All these angles are 90 degree each. Okay, area L into B, and we have to focus on that areas basically. Okay, area and perimeter on this in this chapter. Okay, so area and perimeter of the rectangle are perimeter equal to 2 into L plus B एंड एरिया इक्वल टू एल इंटू बी. ओके, जब भी हमको एरिया कैलकुलेट करना तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे. एंड पेरीमीटर के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है कि सारी बाउंड्री को प्लस कर देंगे. बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. ओके, एल प्लस बी, सो 2l प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ दिस rectangle, let us suppose this is x, so we have to apply the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem we can say the hypotenuse square x square equal to l square plus b square, and x equal to under root of l square plus b square. Okay, this is all about the basic about the rectangle. Now we are I am taking the square. As we know, all the sides are equal. Let us suppose a and a, these are the sides. Okay, all are equal. And the first one is area is side into side, that is a into a, and we can say that a square. And perimeter equal to again sum of the side. Sum of the side means a plus a plus a plus a, that is 4a. Okay, again if you want to calculate the diagonal of a square, so diagonal of a square, let us suppose this is y, so y square equal to a square plus a square, so it is y equal to 2a square and under root, it means root 2a. Okay, so this is the diagonal of a square. Now the next term we have area of path. Okay, area of path means this is the surface between two figures like concentric figures. Okay, concentric मतलब जिनका सेंटर हम सेम लेते हैं इन केस ऑफ सर्किल. ओके, एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में हम इस टाइप की सरफेस लेते हैं. और जब हमको कंसेंट्रिक सरफेस कहा जाएगा तो हम एक सेंटर लेंगे और उसके अराउंड 2 सर्किल को ड्रॉ करेंगे. दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दिस इज अबाउट द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सरफेस. सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पाथ. Okay, let us suppose the area, inside area is the side of the inside rectangle is L1 and B1. Let us suppose this is a rectangle and this is L2 and B2. So area of the inner surface, let us suppose A1. Okay, A1 equal to L1 into B1 and A2 equal to L2 into B2, because these are the rectangular surface, so we can calculate the area. A equal to L into B, A equal to L1 into B1, and A2 equal to L2 into B. Okay, this surface include this area, and this surface include whole of the area. So we have to calculate the area of the path. Okay, this is the path. Okay, now we have to calculate, let us suppose the area of the path be A. So A equal to A2 minus A1, or we can say that L2 A2 minus L1 L2 B2 minus L1 B. Okay, this is the area of the path in case of rectangle. और अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में क्या करेंगे, A1 स्क्वायर एंड ये A2 स्क्वायर, सो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पाथ. ओके, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे ग्रेवलिंग करनी. ओके, सो उसका रेट दिया रहेगा हमको
एंड उस रेट से हम कैलकुलेट कर देंगे कि टोटल हमारा कॉस्ट कितना होगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या एक अलग टाइप का क्वेश्चन अगर कैसा होता है, लेट अस सपोज हमको एरिया नहीं दे रखा है, हमको टोटल कॉस्ट दे रखा है, एंड फ्रॉम द कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया। क्या करेंगे, हमको कॉस्ट दे रखा होगा ₹4 पर मीटर स्क्वायर लाइक दिस। लेट अस सपोज टोटल कॉस्ट इज 100। ओके, एक स्क्वायर सरफेस है और उसके चारों ओर क्या है, एक पाथ है, और हमको उसका टोटल कॉस्ट ₹100 दे रखा है, एंड 4 मीटर ₹4 पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो हम क्या करेंगे, ₹100 डिवाइड बाय 4। सो अगर हम रुपीज़ से इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास 25 जो आएगा वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉरी, एरिया ऑफ द सरफेस आ जाएगा। और 25 मीन्स 5 × 5, इसका मतलब जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए एग्जांपल सॉरी एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द रूम, दिस डिक्शनरी इज लाइक अ रूम। ओके, 6 साइड है। सो एज्यूम करते हैं दीज आर द 2 वॉल्स एंड दीज आर अदर 2 वॉल्स। ओके, एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज अपर सरफेस ऑफ द रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स लेट अस सपोज दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ओके, सो थर्ड वन इज दैट इज हाइट। ये हाइट होगी, इस रूम की हाइट इतनी हो जाएगी, इस केस में इतनी हो जाएगी। ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हमको एरिया ऑफ अगर 4 वॉल से निकालना है तो हमको इस सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है एंड ये कैलकुलेट करना है और उसका डबल कर देंगे। सो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट करेंगे जब हम, तो हमको ये वाला एरिया आएगा। कौन सा, ये वाली साइड वाला। ओके, दिस इज द लेंथ इंटू हाइट, एंड ये एरिया भी, ये एरिया इसके इक्वल होगा, तो लेंथ इंटू हाइट 2 बार आ जाएगा। एंड सिमिलरली इन द सेम वे बी इंटू एच से हमारा ये एरिया आएगा, एंड इसका अपोजिट हमारा बी इंटू एच ये भी हो जाएगा। तो हमने निकाला क्या, एल इंटू बी माइनस कर देंगे। तो टोटल जो एरिया होगा इस क्यूबॉइडल बॉक्स का होगा L2LB प्लस BH प्लस HL। देखते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, लेट अस सपोज ये L और ये हमारे पास B है और ये H है। ओके, ये वाली सरफेस अपर सरफेस, दिस इज द बॉटम सरफेस। ये हमको कैलकुलेट नहीं करना है बिकॉज एरिया ऑफ द 4 वॉल करना है, तो हम चारों सरफेस लेंगे इसके अराउंड। तो हमारे पास एक सरफेस ये वाली है, इसका एरिया B इंटू एच है, एंड एक सरफेस ये जो कि सिमिलर है, तो सिमिलर है मतलब इसका एरिया भी हमारा B इंटू एच होगा। एंड थर्ड सरफेस हमारे पास ये सरफेस बचेगी, ये वाली जो पीछे की सरफेस है, एंड इन फ्रंट सरफेस हमारे पास ये आएगा, एंड इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच। ओके, सो वी हैव टोटल 4 सरफेस इन दैट पर्टिकुलर केस, एरिया ऑफ 4 वॉल के केस में। अगर हम टोटल इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। LB प्लस BH प्लस HL, जिसमें से हमको माइनस क्या करना है, 2LB क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये अपर सरफेस और बॉटम सरफेस का एरिया है। सो दैट वी हैव टू रिमूव दिस एरिया फ्रॉम दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए हमको क्या करना है, एरिया इक्वल टू B इंटू एच एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड L इंटू एच, because this is L and H. okay, like same similar to this L into H, and ये भी L into H है। ये बैक सरफेस है और ये फ्रंट सरफेस है जो हमको दिख रही है, ये बैक सरफेस है, L into H ये, और L into H ये वाली सरफेस होगी। ऐसे ही हमारे पास ये H है और ये B है, तो B into H और ये वाला हमारा B into H, तो B into H प्लस 2 L into H। ओके, ओके, सो एरिया इक्वल टू 2, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और एच भी कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो हमारे पास इनर सरफेस में क्या बचेगा, बी प्लस एच। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2L प्लस बी। 2L प्लस बी होता क्या है, 2L प्लस बी इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड इंटू एच, ये हमारा एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हो जाएगा। आपको अगर सिमिलरली अगर आपको याद रखना है तो इजीली आप याद रख सकते हैं, एरिया पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इनटू हाइट को हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एक्सरसाइज 16A फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुई डायमेंशन आर दिस। क्वेश्चन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आर योर होमवर्क और 6th क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, 6th क्वेश्चन इज दिस, द perimeter of a rectangle is 3/5 kilometer if the length of the field is twice its width, find its area. Very simple question. If your concept is clear, then definitely you will get a more than enough in this from this chapter. Okay, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एक्चुअल वे में पूछा क्या है। ओके, द क्वेश्चन इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर मीन्स 12+b। 12+b इज गिवन एज 3/5 ऑफ किलोमीटर। किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ओके, नाउ 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 200 200 इंटू 3 दैट इज 600 इज द टोटल पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, नाउ इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, गिवन दैट लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हिज विड्थ, यानी कि एल इक्वल टू 2 भी है। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे 2l, एल की जगह 2 भी रख देते हैं, और प्लस बी इक्वल टू 600 एंड इसको कैंसिल करते हैं तो 300, 3b इक्वल टू 300 एंड b इक्वल टू 300/3 दैट इज 100। सो b इक्वल टू 100 मीटर। वेरी सिंपल। ओके, फाइंड इट्स एरिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल l इक्वल टू 2b मीन्स 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 मीन्स l इक्वल टू 200 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया इक्वल टू l इंटू b, l इंटू b मीन्स 200 इंटू 100 मीटर। ओके, 200 इंटू 100 मीन्स 20,000 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया इन किलोमीटर पर स्क्वायर, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 इंटू 1000, बिकॉज मीटर स्क्वायर है और किलोमीटर स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल, if a side of a square is double, find the ratio of the area of the resulting square, so that ये भी simple question है। So up to question number 10 are your homework. Okay, and if you have any doubt then you please ask your doubt in WhatsApp also. Okay, so thank you so much. Okay, up to question number 10 you have to complete, and the question which are important as per your interest or which are somehow tough for you, you must have to do these question in your fair copy. Okay, otherwise rest of the question you can do in your homework copy. Okay, thank you so much.